بے قابو کورونا سے مزید 30 اموات، ملک میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1197 ہو گئی، 57,705 افراد وائرس سے متاثر، سندھ میں 22,934 اور پنجاب میں 20,654 مریض، خیبر پختونخوا میں 8,080 اور بلوچستان میں 3,468 کیس رپورٹ۔ وینٹیلیٹر کے معاملے میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں جو ہیں انڈر کنٹرول ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4200 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ تمام شہروں کی صورتحال الحمدللہ ایسی ہے کہ کسی بھی شہر میں ابھی تک کووڈ والے جو وینٹیلیٹر ہیں وہ 50% سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے۔ وینٹیلیٹرز کے حوالے سے حالات انڈر کنٹرول، فیصل آباد سے متعلق سوشل میڈیا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، حالات یہی رہے تو جون کے آخر تک 2000 وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی، ٹڈی دل سیاسی مسئلہ نہیں، پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے مل کر کام کرنا ہوگا، چیئرمین NDMA کی میڈیا بریفنگ۔ شہباز شریف کے آفس سیکرٹری بھی کورونا کا شکار، بدر شہباز نے عید کی نماز بھی ان کے ساتھ ادا کی تھی، لیگی صدر نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا، اہل خانہ سے میل جول بند۔ پنجاب میں آج سے مارکیٹس، بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات تبدیل، دکانیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی، میڈیکل سٹورز کو استثناء۔ 2818 پہلے 2 دن میں عید کے پنجاب میں اتنا کبھی جو ہے وہ حادثات نہیں ہوئے، کبھی 1700 جو ہے 60 سے زیادہ کیسز جو سیریسلی ہوئے زخمی جو کہ پھر اسپتال میں داخل ہونے پڑے، 80% موٹر سائیکل کی وجہ سے ہیں۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم ذیشان۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے، جہاں ترنول میں پولیس ناکے پر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائر کھولے گئے، فائرنگ سے ASI محسن ظفر اور ہیڈ کانسٹیبل سجاد شہید ہوئے ہیں۔ IG اسلام آباد عامر ذوالفقار خان نے اس واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے IG آپریشنز کی سربراہی میں 2 اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اسلام آباد سے، جس کے علاقے ترنول میں پولیس ناکے پر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، فائرنگ کی زد میں آ کر ASI محسن ظفر اور ہیڈ کانسٹیبل سجاد زندگی کی بازی ہار گئے۔ IG اسلام آباد عامر ذوالفقار خان نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ IG آپریشنز کی سربراہی میں 2 اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے علاقے ترنول میں، جہاں پولیس ناکے پر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ASI محسن ظفر اور ہیڈ کانسٹیبل سجاد شہید ہو گئے۔ اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے IG اسلام آباد عامر ذوالفقار خان کی جانب سے۔ IG آپریشنز کی سربراہی میں 2 اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترنول کے علاقے میں پولیس ناکے پر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کرنے کے بعد دونوں موٹر سائیکل سوار فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے ASI محسن ظفر اور ہیڈ کانسٹیبل سجاد شہید ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کا نوٹس لیا ہے IG اسلام آباد نے۔ اس کے ساتھ ہی IG آپریشنز کی سربراہی میں 2 اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ قمر، ابتدائی تحقیقات میں کیا سامنے آ سکا؟ جی ابھی تک تو جائے وقوع کے ارد گرد سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ DIG آپریشن جو ہے ان کی نگرانی میں ایک خصوصی ٹیم جو ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے تعینات کی ہے، جبکہ SP انویسٹیگیشن جو ہے مصطفیٰ تنویر وہ بھی ایک ٹیم کی صدارت کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ اس واقعے کو تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس میں ایک محسن ظفر نامی ASI جبکہ ایک ہیڈ کانسٹیبل سجاد جو ہیں ان کو یہ گولیاں ماری گئی تھی، اور جو پولیس ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 گولیاں جو ہیں یہ فائر ہوئی تھی، اور 25 کی 25 گولیاں جو دونوں پولیس اہلکاروں کو لگی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی۔ تاہم اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس چیز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے دشمنی بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک جگہ پر اتنے زیادہ فائر جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو 2 فائر کرنے کے بعد وہاں سے فرار
होने की कोशिश करते हैं। तो इस वाक़े में वो जो मोटरसाइकिल सवार थे वो वहाँ रहे और उन्होंने फायरिंग करने के बाद काफ़ी देर वहाँ पर फायरिंग करते रहे कि 25 गोलियां उन्होंने फायर की, जिससे दोनों पुलिस एहलकार जो थे वो शदीद जख्मी और मौका पर ही उनकी शहादत हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। भारत का खित्ते की चौधराहट का ख्वाब चकनाचूर हो गया। चीन ने इलाके का स्टेटस बदलने की कोशिश पर लद्दाख में मुतनाज़ एरिया का कंट्रोल कर लिया। सिक्किम बॉर्डर पर भी मजीद फौज तैनात कर दी। भारतीय क़यादत शर्मिंदगी मिटाने के लिए घटियापन पर उतर आई है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। इंडियन मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 50 भारतीय फौजी चीनी हुदूद में दाखिल हुए। ट्रेस पासिंग के बाद भारतीय और चीनी फौजी आपस में गुत्थम गुत्था हुए। लोहे के रॉड्स और डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। का कहना है कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़े इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। भारत वादी गालवान के करीब गैर कानूनी दिफाई तामीरात कर रहा है। भारतीय फोर्सेस की सिक्किम और लद्दाख में चीन के हाथों रुसवाई पर भारतीय सियासी क़यादत को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। खिफत मिटाने के लिए भारत ने घटियापन की इंतहा कर दी और उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मोदी सरकार की शह पर भारतीय मीडिया पर जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे पर अपनी हुकूमत को खूब लताड़ा। का काम भी जारी है। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन के सरबराह को करार देते हुए उन्हें फौरी हटाने का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी भी मुस्तरद कर दी। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। का मलबा शहीद पायलट पर डाला जा रहा है। सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। कराची में सूबाई हुकूमत के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम सिंध सईद गनी बोले तहकीकाती कमेटी को तस्लीम नहीं करते। एक दिन पहले उसको हीरो बना रहे थे, दूसरे दिन आपकी बातों ने उसको विलन बना दिया है। अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, उसकी सफाई कौन देगा? कि जो कमेटी बनाई है उस पर हमें एतराज़ात हैं। आप क्यों उस कमेटी के अंदर पालपा के नुमाइंदे को शामिल नहीं करते हैं? सूबाई वजीर का कहना था कि पीआईए में आमरियत लागू है, वहाँ जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। पीआईए के जो सरबराह हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। एक आमराना दौर जारी है पीआईए के अंदर और उस आमरियत की वजह से लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, अपनी आवाज नहीं निकाल रहे हैं। आवाज ना निकालने की वजह से, सवालात ना उठाने की वजह से इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि जामिया कराची में कायम डीएनए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में होने वाले टेस्ट में कुछ वक्त लगता है। 10 रोज में डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। फ्रांस से आई टीम ने A320 तैयारे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। हादसे के रोज ड्यूटी पर मामूर एटी कंट्रोलर और अप्रोच टावर कंट्रोलर ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जबकि ब्लैक बॉक्स के दूसरे हिस्से की तलाश के लिए तर्जुमान पीआईए ने शहरियों से मदद तलब कर ली है। मजीद तफसील कराची से असलम खान की रिपोर्ट में। ये तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने 22 मई को ड्यूटी पर मामूर सिविल एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अप्रोच टावर कंट्रोलर से तहकीकात की। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक दोनों ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। टावर ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील के बाद तैयारे को लैंड कराने का टास्क ATC को सौंपा। अप्रोच कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहां तैयारे की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए, कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत पर कप्तान ने कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड को मैनेज कर लेगा। ATC का कहना है कि कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा लैंड कर दिया। कप्तान ने पहली लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से रगड़ खाई। ऐसा महसूस होता है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त स्पीड और ऊंचाई मेंटेन करने लगा और लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराए और चिंगारियां निकली। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए। तहकीकाती टीम ने सवाल किया कि क्या कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग का इशारा दिया था। कंट्रोलर ने जवाब दिया कि कप्तान ने इमरजेंसी का नहीं बताया और कहा कि वो पुरसुकून है, लैंडिंग करा लेंगे।
लैंडिंग के लिए तैयारे को रनवे नंबर 25 लेफ्ट पर लैंडिंग की इजाजत थी। दूसरी तरफ फ्रांस से आई 11 रुकनी टीम ने A320 तैयारे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। PIA हुकाम से ली गई ब्रीफिंग के दौरान सवाल किए गए कि A320 तैयारा एक साल में कितनी बार ग्राउंड किया गया, तैयारे में चेकलिस्ट के मुताबिक किन किन खराबियों पर काम किया गया, गुज़िश्ता साल के दौरान इंजन ने दौरान प्रवास कितने साइकिल मुकम्मल किए, तैयारे को कितनी बार चेकिंग के मराहिल से गुजारा गया, लैंडिंग गियर की कितनी बार तकनीकी बुनियादों पर सर्विस की गई, तैयारे की अहम टेक्निकल सर्विसेज में किन इंजीनियर्स ने काम किया, तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए क्या वसाइल और पुर्जाजात इस्तेमाल किए गए, क्या तैयारे के तमाम अलार्मिंग सिस्टम में कभी खराबी पैदा हुई। तहकीकाती टीम ने तैयारे की गुज़िश्ता एक साल मुद्दत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। PIA तैयारा हादसा 43 मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी हैं, जबकि 54 अब भी सर्द खानों में मौजूद हैं। NDMA की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड से एक शख्स को शनाख्त भी किया है, जबकि फैसल ईदी ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी दबाव के जरिए लाशें हतमी शनाख्त के बगैर हासिल की जा रही हैं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। ये के तैयारे एयरबस A320 के 22 मई को क्रैश होने का मामला। तहकीकात में मुआवनत के लिए फ्रांसीसी टीम मंगल की सुबह खुसूसी परवाज से कराची पहुंच गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की एयरबस माहिरीन को ब्रीफिंग, टीम को मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ये दोनों हालात टीम के हवाले किए जाएंगे जो इन्हें डीकोड करेगी। डीकोड होने के बाद जहाज की रवानगी से गिरने तक कप्तान और मुआविन कप्तान की गुफ्तगू सुनी जा सकेगी। इस बात का जायजा लेने में मदद मिलेगी कि कॉकपिट अमले ने एयरबस के तयशुदा प्रोसीजर पर किस हद तक अमल किया। टीम के दौरे से कबल जाए हादसा को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिसार में ले लिया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में टीम ने मॉडल कॉलोनी में तैयारा हादसे के मकाम का दौरा किया। टीम के हमरा सिविल एविएशन और PIA हुक्काम भी थे। टीम ने सवा घंटे तक तबाहशुदा तैयारे के मलबे का जायजा लिया। इंजनों, लैंडिंग गियर, विंग्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और मुतासिर होने वाले मकानात का मुआयना किया गया। टीम की जानिब से तस्वीर और वीडियोज भी बनाई गयी। तहकीकाती टीम ने कराची एयरपोर्ट पहुंचकर मुतासिरा रनवे का भी मुआयना किया। दूसरी तरफ PIA तर्जुमान के मुताबिक एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम तहकीकात से मुंसलिक है। तहकीकाती टीम में किसी मुतल्लिका इदारे के अफराद शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तलब की गई मालूमात, दस्तावेजात या रिकॉर्ड देंगे। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के साथ साथ अब फ्रांसीसी माहिरीन ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द वजूहात का तयन किया जा सकेगा। कैमरामैन अशफाक सहोत्रा के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध की तैयारा हादसे में शहीद 2 भाइयों की रिहाइश का आबद, वालिद से ताज़ियत की। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में ज़ेरे इलाज 3 खवातीन की आयादत भी की। इमरान इस्माइल का कहना था कि रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि हादसा इंसानी गलती के बाइस हुआ या कोई तकनीकी खराबी इसकी वजह बनी। सिंध इमरान इस्माइल ने सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में ज़ेरे इलाज PIA तैयारा हादसे में जख्मी होने वाली 3 खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि दुनिया में कानून है कि एयरपोर्ट के करीब ग्राउंड +1 तामीरात होती हैं। यहाँ इमारतें कैसे बन गईं किसी को इल्म नहीं। वज़ीर आज़म को खत लिखा है कि SBCA को भी तहकीकात में शामिल किया जाए। हादसे से मुताल्लिक रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि इंसानी गलती थी या तैयारे में कोई मसला था। किसी ऑफिशियल इदारे ने अब तक ये नहीं कहा कि ये आया कि ये पायलट की गलती थी या जहाज़ में कोई ख़राबी थी या इंजन ख़राब था या लैंडिंग गियर ख़राब था। ये जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है जब तक ये रिपोर्ट की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल तौर से शाया नहीं हो जाती। गवर्नर सिंध का कहना था कि तैयारा हादसे से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब से डॉक्टर हुमायूं अख्तर की सरबराही में मैयतों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। DNA के जरिए शनाख्त में वक्त लगता है। जो बॉडीज़ इस वक्त मॉर्चरीज में रखी हुई हैं, उनकी फैमिलीज़ अगर शनाख्त करना चाहें तो उनके लिए कमिश्नर कराची के ज़ेरे एहतमाम बंदोबस्त किया गया है कि वो वहाँ पर जाकर उन बॉडीज़ को शनाख्त करने की अगर ख्वाहिश रखते हैं बगैर DNA के तो वो ये काम कर सकते हैं। गवर्नर सिंध ने जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान भी किया। इमरान इस्माइल हादसे में जाँ बहक नॉर्थ कराची के रिहायशी 2 भाइयों जुहेब और शुएब के घर भी गए और उनके वालिद से ताज़ियत की। उनका कहना था कि हादसे ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया है।
वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना था कि हादसे का शिकार होने वाली फ्लाइट के पायलट ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की। इस मामले की शफाफ तहकीकात होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला हादसे का शिकार PIA के तैयारे के शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के घर गए। उन्होंने अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर एजाज शाह का कहना था कि गम की घड़ी में पायलट सज्जाद गुल के ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला ने मरहूम के वालिद को यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हादसे की तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी। परवेज़ इलाही की तैयारा हादसे में शहीद चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल की रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए साले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि खालिद शेरदिल शहीद फ़र्ज़ शनास, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थे। कोरोना वबा के दौरान खालिद शेरदिल शहीद ने फ्रंट लाइन पर काम किया। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस अनम मकसूद के घर आमद। मरहूमा के अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर के इलाके धर्मपुरा में एयर होस्टेस अनम मकसूद के घर उनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए पहुंची। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कराची तैयारा हादसे में जाम बहक अफराद के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। खबर दें आपको कि पंजाब में ईद की वजह से तब्दील होने वाला टाइम आज से फिर तब्दील हो रहा है। मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। जी हाँ, हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुल सकेंगे। आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। अब वो दोबारा सुबह 9 से 5 बजे तक खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने ईद की वजह से मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दी थी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.